ध्येयं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिशन्नं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्त्रिकालशक्ताय जगन्नाथसुताय च सभीताय सपुत्राय सधनत्राय ते नमः बर्हाभिराभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे नस्तवेणु श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं परिजयन्ता वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्म गोपालवेशं तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वां नमामि हरिप्रिये मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरि भक्ति पराजित हरिनाम परायणा दुर्वृत्ता वा सुवृत्ता वा तेषां नित्यं नमो नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশয় বিষ্ণুপুরণ দুর্গমে পথিমেন্ধস্য স্থলোৎপাদগতের মোহ সকৃপা যষ্টিদানেন সন্ত সন্ত্যবলম্বনম জয় 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 দেব ত্রিভুবন মঙ্গল দিব্য নাম ধেয় জয় 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 কৃষ্ণ দেব শ্রবণ মন নয়নামৃতাবতার পরম অনুরাগী কৃষ্ণ ভক্ত চূড়ামণি বৃন্দাবন ধামাশ্রয়ী কবীন্দ্র শ্রীপদ লীলাসু
শ্রীল বিল্লমঙ্গল ঠাকুর মহোদয় তিনি তার শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতের উপসংহারে গোবিন্দের জয়গান করছেন। একটা মূল্যবান শব্দ প্রয়োগ করলেন শেষে, শ্রবণ মন নয়নামৃতাবতার। তুমি শ্রবণ মন এবং নয়নের অমৃতাবতার, পরমানন্দ ঘনাবতার। সহজেই ভক্তি মার্গ আনন্দময়। প্রথমে থেকেই সুরক্ষা। নমে ভক্ত প্রণশ্যতি। আমার ভক্তির কখনোই স্খলন পতন নাই। জন্ম কর্ম প্রারব্ধ কোনো বন্ধনই নাই। যখনই আমার চরণে শরণ নেয়, সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত জীবন মুক্ত হয়ে যান। এমনকি চৈতন্য চৈতামৃতে মহাপ্রভুর উক্তি, সনাতন গোস্বামী পাদ যখন বারবার দৈন্য করছেন, আমি নিজ জাতি নিজ সেবী কুবিষয়ী, তখন মহাপ্রভু বললেন, বৈষ্ণবের দেহ ভক্তের দেহ প্রাকৃত কবু নয়। কৃষ্ণ আমাকে পরীক্ষা করছেন। প্রথম দিনই আমি তোমার অঙ্গে চন্দন চতুষ্মণীর গন্ধ পেয়েছি। আমার ভক্তিতে বৈষ্ণবী নিষ্ঠা আছে কিনা এই জন্য তোমার অঙ্গে কণ্ডু রসা দিয়েছেন। আমি তোমাকে উপেক্ষা করি না বুকে নিই। কিন্তু সনাতন কৃষ্ণ কৃপায় এতটুকু বোধ হয়েছে, বৈষ্ণবের দেহ প্রাকৃত কবু নয়। অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময়। ভজনের আরম্ভে জীবন মুক্তি, আনন্দই আনন্দ। এই পথে দুঃখ নাই, ব্যথা নাই, বেদনা নাই, কিচ্ছু নাই। তবে যে জন্ম কর্ম রোগ শোক জ্বালা যন্ত্রণা দেখা যায়, বললেন এই কৃষ্ণের কৃপা, ভক্তি মহারানীর অপরূপ রহস্যময়ী দুর্গেয় এ লীলা। এই জন্য ব্যাসাবতার বললেন, বৈষ্ণবের দেখো যত ব্যবহারিক দুঃখ, নিশ্চয় জানিও তাহা পরানন্দ সুখ। দেখাচ্ছে ওই রকম, আসলে কোনো দুঃখ ব্যথা বেদনা কিছুই নাই। আনন্দ সাগরে সাগর কাটা, সচ্চিদানন্দময় হয়ে গেল। বলেন হ্যাঁ, কখন কিভাবে? বললেন কেন? যখনই উনি ভক্ত সঙ্গ আরম্ভ করলেন, শ্রবণ কীর্তন কানে গেল, কয়লাটা আগুনের মধ্যে পড়ে গেল। এত বড় একটা গাছের গুড়ি আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে শীতকালে, আর সকলে বসে আগুন পোয়াচ্ছে। দীক্ষাকালে করে ভক্ত আত্মসমর্পণ। যখনই দীক্ষা হচ্ছে তখনই সচিদানন্দময় হয়ে যাচ্ছে দেহ মন প্রাণ। হরিভক্তি বিলাসেও তাই বলা হয়েছে। দীক্ষাকালে করে ভক্ত এত বড় একটা গাছের গুড়িকে, বট অশ্বত্থ গাছের গুড়িকে আগুন লাগিয়ে দেয় শীতকালে পোয়া। কাঠটা উনুনের ভিতরে ভাটির মধ্যে দিয়ে দেওয়া হলো, কয়লা আগুনে, তো আগুন হবে কিনা? তখন তাকে আগুন বলে মানা হবে কিনা? লাল হয়ে গেছে কিনা? দীক্ষাকালে করে ভক্ত আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করেন আত্মসম। স্পর্শ মানে কি বারবার ছোঁয়াতে হয় না, একবার ছোঁয়ালেই হয়। সেই দেহ করেন তার চিদানন্দময়, চিদানন্দময় দেহে ভক্ত কৃষ্ণের চরণ ভজয়। সচ্চিদানন্দ হয়ে সচ্চিদানন্দের অনুশীলন করতে করতে সচ্চিদানন্দের অনুভূতিতে সচ্চিদানন্দ লোকে যাওয়া। জীব গোস্বামী পাদ বললেন যে জীববা মরবা সাধু, হে সাধু তুমি বেঁচে থাকো অথবা তুমি পরলোকে যাও। বেঁচে থাকলেও আনন্দ, শ্রবণ কীর্তন অর্চন বন্দন পরমানন্দ, আর চলে গেলেও পরমানন্দ। সাক্ষাৎ সেবালাও, দু হাতে লাড্ডু, তোমাকে বর দেওয়ার মতো আমার ক্ষমতা নেই। সেই ঋষি বলছেন, একজন রাজপুত্র চলে গেল, তাকে আশীর্বাদ করছেন ঋষি যে হে রাজপুত্র তুমি চিরকাল বেঁচে থাকো। কোন সৌভাগ্যবশত রাজকুলে জন্ম নিয়েছ, যতদিন বেঁচে থাকবে রাজভোগ, মরার পর কি হবে কে জানে। একজন সেখানে তপস্যা করছিলেন মুনিকুমার, তিনিও দণ্ডবোধ করলেন। তখন উনি বলছেন তুমি তাড়াতাড়ি মরে যাও। কেন বললেন, যতদিন বেঁচে থাকবে তপস্যার কষ্ট, আর তোমার জন্য স্বর্গের সুখ অপেক্ষা করছে, বললেই সেই সুখ পাবে। এর ভিতরে এক ব্যাধ আসছিল, সেই ব্যাধও প্রণাম করলো। তখন তিনি বললেন তুমি মরো না, তুমি বেঁচো, বাঁচলেও তুমি এই দুঃখময় জীবন, হিংসাত্মক জীবন, আর বললে নরকাদি ক্লেশ। একজন সাধু সেই ঋষিকে যখন দণ্ডবোধ করলেন, তখন বললেন তুমি বাঁচো কি মরো এটা তোমার ইচ্ছা, জীববা মরবা সাধু, তোমাকে আশীর্বাদ করার মতো, ভোট দেওয়ার মতো ক্ষমতা আমার। এই শ্লোকটি জীব গোস্বামী পাদ যে কিভাবে জীবন মুক্তি লাভ হয় ভক্তির প্রভাবে। ভজন মার্গ যে আনন্দময়, ভক্ত যে আনন্দময়, এটা আমরা প্রথম বুঝতে পারি শ্রী গুরুপাদ পদ্মের থেকে, যে কিভাবে সহজ সরল সাবলীল ভাষায় ভক্তি মার্গকে বুঝিয়ে, ভক্তি মার্গে আকর্ষণ করিয়ে, আর ভজন দিয়ে, জ্ঞান বিজ্ঞান অনুভূতি দিয়ে গুরুদেব শিষ্যকে কিভাবে সচ্চিদানন্দময় মার্গে প্রবর্তিত করেন। এই জন্য আচার্য চৈত্য বপুষা স্বগতিং জনক্তি, ভগবান নিজেকে আচার্য রূপে, গুরু রূপে, ভক্ত রূপে প্রকাশ করছে। সেখান থেকে সমস্ত অনুভূতির শুরু হচ্ছে। গুরু রূপে ঘরে ঘরে দীক্ষা দেন সবাকারে, বৈষ্ণব রূপেতে দেন শিক্ষা, শাস্ত্র রূপে কহেন জ্ঞান, আর আত্মা রূপে অধিষ্ঠান, দেখো তার কারে বা উপেক্ষা। এই যে করুণার ধারা, ভগবান তিনি উদ্ধবকে বললেন এই যে আচার্য রূপ, এই যে গুরু রূপ, এটা আমারই স্বরূপ।
আচার্যং মাং বিজানিয়া নাবমন্যেত করিচি ন মর্তবুদ্ধ্যা সুয়েত সর্বদেবময় গুরু। বাইরে আমি আচার্য রূপে উপদেশ দিচ্ছি, নাম মন্ত্র দিচ্ছি, সেই গুরুকে আমার স্বরূপ বলেই জানবে। কখনোই শ্রী গুরুদেবের প্রতি মনুষ্য বুদ্ধি করবে না, সেটি আমারই স্বরূপ, আমি ওই রূপে কৃপা করছি, আমি ওই রূপে তোমার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। আমাদের তৃতীয় সংখ্যক যে নামাপরাধ, সেই নামাপরাধের ভিতরে হচ্ছে গুরুবাবজ্ঞা। নাম প্রসন্ন হচ্ছেন না, ভজন করেও প্রেম লাভ হচ্ছে না, চিত্তশুদ্ধি হচ্ছে না। কেন? বললেন গুরু তত্ত্বে বা গুরুতে অবজ্ঞা থাকলে, ভক্ত তত্ত্বে বৈষ্ণব তত্ত্বে অবজ্ঞা থাকলে নাম প্রসন্ন হন না, ভজনে সিদ্ধি লাভ হয় না। সাধু মুখে কথা অমৃত শুনিয়া বিমল চিত, নাহি ভেল অপরাধ কারণ। এটাই বিলম্বের একমাত্র হেতু। ভজন জীবন ব্যাহত হয়ে যাচ্ছে, সাধন ভজনে শীঘ্র ফল লাভ হচ্ছে না। এখানে গুরু অবজ্ঞাটা কি? অবজ্ঞা বলতে গুরুতত্ত্বে মনুষ্য বুদ্ধি। ন মর্তবুদ্ধ্যা সুয়েত। যদি মানুষ জ্ঞান করি তাহলে কি ক্ষতি, আর না করলেই বা কি লাভ? বললেন কি ক্ষতি? অনেক বড় ক্ষতি। সর্বং কুঞ্জর শৌচবৎ। কেউ যদি গুরুদেবকে মানুষ জ্ঞান করেন তো ওনার সাধন ভজন সব কিছু নাকি হস্তি স্নানের মতো নিষ্পন্ন, হাতির স্নান। এইখানে দৃষ্টান্ত নিয়ে এলেন কেন? বললেন দেখুন, একটা হাতিকে আপনি ভালো করে স্নান করান, ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিন, সঙ্গে সঙ্গে ও আবার কাদা মাখবে। বলেন ওটাই ওর স্বভাব, একে বলা হয় কুঞ্জর শৌচবৎ। সেই প্রকার সাধন ভজন কুঞ্জর শৌচের মতো হয়ে যায় যদি গুরুতে মনুষ্য জ্ঞান থাকে, সেটা হাতি স্নান তুল্য হয়ে যাবে। যাই হোক, এই প্রসঙ্গে অনেক আলোচনা। আমাদের মধ্যে মহান্ত মহারাজ আসছেন, আমরা ওনার চরণে প্রার্থনা জানিয়েছি, আপনারা ওনাকে সম্মান করুন। এখানে শ্রীকৃষ্ণ শিক্ষাগুরু, মন্ত্রগুরু তো শ্রীকৃষ্ণ বটে, শিক্ষাগুরু পাদ পদ্মকেও লীলাসুখ তিনি কৃষ্ণেরই স্বরূপ বলেছেন। কবিরাজ গোস্বামী পাদও বলেছেন, যিনি কর্ণে মন্ত্র দিচ্ছেন, ভজন শিক্ষা দিচ্ছেন, তিনি সাক্ষাৎ ভগবানের স্বরূপ। এই জ্ঞান না হলে কখনোই এই যে ভজনের ফল, ভজন মহিমা বলা হলো, এটা জীবনে লাভ হবে না। সর্বং কুঞ্জর শৌচবৎ। সুতরাং গুরু রূপে তিনি যে শিক্ষা এবং দীক্ষা দিচ্ছেন, সাধককে সাধন রাজ্যে টেনে নিচ্ছেন, ধীরে ধীরে সচিদানন্দময় করছেন তার দেহ প্রাণ। সে যে ভজন ভক্তির আনন্দকে লাভ করছে, এটি গুরু কৃপারই ফল।
এবং এই কৃপা স্বয়ং শিবলিঙ্গ মৌলি শ্রীকৃষ্ণই এই রূপে করছে। বিশেষত যেখানে ব্রজপ্রেম কবি ভাব, সেইখানে শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ শিক্ষাগুরু রূপে, দীক্ষাগুরু উনি, শিক্ষাগুরু উনি, শাস্ত্র উনি, অন্তর্যামীও উনি, আবার বাইরে বৈষ্ণব রূপেও উনি, সাধন রূপেও উনি। অন্তর্যামী রূপে তো প্রেরণা দিচ্ছেন, লীলাসূত্র নিজেকে রাধারানীর সখী রূপে চিন্তা করে সিদ্ধি লাভ করেছেন। সেইখানে শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ শিক্ষাগুরু এই প্রেমে। কিভাবে শিক্ষাগুরু? ভক্তি রসামৃত সিন্ধুতে শ্রী রূপ গোস্বামী পাদ একটা দৃষ্টান্ত দিলেন। কর্ণা কর্ণী সখী জনীন সমং বিজনী দুতি স্তুতি প্রক্রিয়া পদ্মু বঞ্চন চাতুরী গুণনিকা কুঞ্জ প্রয়াণে নিশি বাভীর্যং গুরুবাচি ভেনু বিরত উৎকর্ণতাই তীব্রতান কৈশোরেণ তবাব্দ গুরুনা কৃষ্ণ গৌরী গণ পাঠকে। বৃন্দাদেবীর সঙ্গে দেখা। বৃন্দাদেবী সহসা শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করলেন বনপথে, ওহে এই বৃন্দাবনে নাকি তুমি একটা বিদ্যালয় খুলেছ, তোমার সেই বিদ্যালয় আজকাল কেমন চলছে? কৃষ্ণ হাসছে, বিদ্যালয় আমার? বলেন হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার, তুমি খুলেছ, তাই তো জিজ্ঞাসা করছি। বৃন্দে তুমি কি বলছো? আমি তো আরে 2.5 বছরের থেকে গরু চড়াচ্ছি, আমি নিজে কোনোদিন লেখাপড়া শিখিনি, আমি আবার অন্যকে পড়াবো কি করে? বললেন না না, তুমি বিদ্যালয় খুলেছ, তুমি পড়াচ্ছ, আমি ঠিক বলছি। বলেন কাদেরকে পড়াচ্ছি? আমি তো নিজেই লেখাপড়া জানি না। বলেন খুব জানো, তোমার কৈশোর হচ্ছে গুরু, তোমার এই যে রূপ, তোমার কৈশোর শোভা। অপূর্ব একটা বিদ্যালয় খুলেছে ওই কৈশোর। বৃন্দাদেবীর কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণের কৌতূহল যাচ্ছে, ভাবছে নিশ্চয়ই কোনো গোপন কথা বলবে, হয়তো গোপিকাগণেরই কথা শোনাবে, ওই জন্য আমার কাছে এসেছে, খালি হাতে আসেনি, এমনিও আসবে না, কিছু অপূর্ব বস্তু হয়তো আমাকে উপহার দেবে, আস্বাদন করাবে, কিছু রসমাধুরী, তাই এসেছে। আচ্ছা আমার এই বিদ্যালয়টা কোথায়, কে পড়ে, কোন ছাত্র? বৃন্দাদেবী বললেন কেন? কোন ছাত্র পড়ে না, ওটা বালিকা বিদ্যালয়, পড়ে হচ্ছে ছাত্রী, ছাত্রীরা পড়ে। বলেন কি পড়ে? বলেন কানে কানে কথা, কর্ণা কর্ণী সখী জনীন সমম। দুতিকে কিভাবে পাঠাতে হবে, দুতিকে কিভাবে স্তুতি করতে হবে, গুরুজনের কথায় কিভাবে বধির হতে হবে, গুরুজন কত কথা বলছে, একটা কথাও কানে যায় না, কোথায় বাঁশি বাজছে, কোন বনে, কোন দিকে, সবসময় কান খাড়া করে আছে। তারপরে রাতের অন্ধকারে কিভাবে ওই দূর বনে যেতে হবে, তার প্রশিক্ষণ, এইসব অনেক বিষয় তোমার কৈশোর গুরু বালিকা বিদ্যালয় খুলে আর আজকাল ছাত্রীদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে। এই মুক্তিতে শ্রীল রূপ গোস্বামী পাদ দেখাচ্ছেন কিভাবে এই গোপী প্রেমের গুরু শ্রীকৃষ্ণ। যাই হোক, আমাদের মধ্যে মহান্ত মহারাজ উপস্থিত, উনি 56 বছরেরও বেশি সময় শ্রী গুরুপাদ পদ্মের
শ্রীঅঙ্গ সেবা, শ্রী পরম গুরু পাদ পদ্মে শ্রীঅঙ্গ সেবা এবং এই শ্রীকুণ্ড তটে বিরক্ত ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণের সেবা এবং সমস্ত গুরু ভ্রাতা ভগিনীগণের আনুকূল্য ভজনানুকূল্য বিধান এবং আমাদের অভিভাবক হয়ে সব সময় উনি আমাদেরকে রক্ষা করছেন। তা না হলে আমরা এখানে বাসই করতে পারতাম। গুরু মহারাজ এক সময় পাঠে এইখানে এই আসনেই বলেছিলেন কুণ্ডাষ্টমীর দিন যে আজ আপনারা এসে যে পরিবেশটা দেখছেন, এই পরিবেশ এখানে কি দেখতেন যদি এটা সংরক্ষিত না থাকতো? এখানে দেখতেন খাটিয়া বেছানো আছে, গরু মোষ বাঁধা আছে, আর গুটোর কান্ডার বিচড়া, আর দেখতেন কেউ হুকো টানছে খাটিয়ায় বসে। এই ছবি আপনারা দেখতে পেতেন। দেখুন আমাদের অধীনে বৈষ্ণবগণের অধীনে যে যে স্থানগুলো আছে সেই স্থানগুলো কত সুন্দর সুশৃঙ্খল সদাচারপূর্ণ মার্জিত। আর বাইরের পরিবেশ দিয়ে দেখুন, ওই গরু মোষ বাঁধা আছে, ওই খাটিয়া, ওই হুকোটা, ওই গড়গড়া, হরিনাম হরিকথা থাকতো না। এই মধুর পরিবেশ আমাদেরকে উনি সব সময় রক্ষা করছেন। পুরো সমাজকে সম্প্রদায়কে ওনার চরণারবিন্দে উনি আমাদের কাছে গুরু মহারাজের প্রতিনিধি প্রতিভূ, পরম শ্রদ্ধাভাজন, পরম আরাধ্যতম এবং শ্রী রঘুনাথ দাস গোস্বামী পাদের পাদ পীঠাধীশ্বর, ওনার চরণারবিন্দে অনন্ত প্রণিপাত জানাই। উনি কষ্ট করে আমাদের মধ্যে এসেছেন। গুরু মহারাজ, আমরা আপনাকে প্রার্থনা জানিয়েছি যে গুরুদেবের সম্বন্ধে কিছু আপনি শোনান। আমরা তো কিছুই জানি না, কারণ আমরা তো আপনার মতো নিকট সান্নিধ্য পাইনি। সঙ্গ যেভাবে আপনি প্রাণ দিয়ে গুরু মহারাজকে রক্ষা করেছেন, ওনার সামনেই আমরা বলছি অভিভাবকের মতো উনি সেবা করেছেন। এক তো দাসের মতো সেবা, সেবকের মতো সেবা, আর এক হচ্ছে অভিভাবকের মতো সেবা। আপদে বিপদে সম্পদে সর্বাবস্থায় অভিভাবক হয়ে গুরু মহারাজ ওনার কথাকে এত মান্য করতেন। উনি যদি নেই, মথুরায় গেছেন বলে আজকে মিটিং হবে না, উনি কোন নির্ণয় আমাদের মহারাজজিকে, দাদা মহারাজজিকে জিজ্ঞাসা না করে গুরু মহারাজজি কোনো কাজ করতেন না, কোনো নির্ণয় নিতেন না। ওনাকে কোনোভাবে বোঝানো যেত না। আগে সে উপস্থিত হবে, তার সঙ্গে কথা বলবো, তারপরে নির্ণয় হবে। অর্থাৎ ওনার বুদ্ধির জন্য উনি শুধু গুরু মহারাজ নয়, পরম গুরু মহারাজ পর্যন্ত ওনার এই বুদ্ধি, উপস্থিত বুদ্ধি এবং অভিভাবকত্বের এবং রক্ষণশীলতা গুরু মহারাজজি বারবার প্রশংসা করতেন। ওনার যে বুদ্ধি প্রাচুর্য, যাই হোক শ্রী মহারাজজির শ্রীমুখে আজকে তো একটু বিলম্ব, 4:30 আরম্ভ হয়েছে। একটু সময় আপনারা দয়া করে বসুন।
यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादं गतिर्गतो ध्यायं स्तवं यशस्वी संघं वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दं वन्दे गुरुनिशा भक्तानिशा निशावतरकान् तत्प्रकाशाश्च तच्छक्ति श्री कृष्ण चैतन्य देशं वन्दे अहं श्री गुरु श्री युतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदानं सगम ललिता श्री विशाखान्विताश्च अजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपीतरो कमलायताक्षो द्विजम्बरद्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियगुरु तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरे प्रिये। ॐ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मण्यहिताय च जगद्धिताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय गोविन्दाय नमः। नारायणं नमस्कृतं नरचैवं देवीं सरस्वती व्यासं येन तद्जयमुदीरये। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय रूप सनातनं भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हे चैरु सानी करि शरण बंदन जावै के विनाश अभीष्टप्रभु। इस मंचासीन सभास्थल में कल जो हमारा आलोच्य विषय हुआ था उस समीकरण में हमारे छोटे भाई মহান্ত মহারাজকে বলেছিলাম যে আমাদের মধ্যে অনেক হিন্দিভাষী গুরু ভাই বোন রয়েছেন, সবাই তো বাংলা বুঝতে পারেন না, আপনি একটু হিন্দি ভাষায় বলুন, রাষ্ট্রভাষা। এই জন্য এখন রাষ্ট্রভাষার इस संबंध में और इस प्रकरण में कल जो हम लोग ज्ञात किए थे नियम सभा श्रीपाद दामोदर श्रीपाद और हमारे तीर्थ यात्री और हमारे जो बहुत देश देशांतर से जैसे हैदराबाद, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ,
ये सब जो आए हुए हैं वो देश विदेश से भी आए हैं, जो हमारे मंचासीन में बैठे हैं और विराजमान हैं। और हमारे वीरभूम एक चक्रा, नवद्वीप धाम, नीलाचल धाम, शांतिपुर धाम से जो हमारे गोस्वामीगण पधारे हैं और हमारे सौभाग्य जो उद्घोषित करके सभाएं किए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे श्री किंग वासी के निष्किंचन वैष्णव भक्तवृंद, भजनानंदी वृंद और भक्तजनों से हमारे सादर नमन करता हूँ। और आद्याशक्ति हमारी मातृ और भगिनियों से भी मैं सादर आदर नमन करता हूँ। ये जो हमारे जो प्रकरण हमारे परमाराध्य प्रातः स्मरणीय श्री श्री गुरु महाराज हमारे सामने विराजमान है, उसका जो ऐतिह्य बोली, गुणावा बोली अपार एवं अनंत। कल हम उद्गिरण किए थे, उसको मैं और दोबारा आवृत्ति नहीं कर रहा हूँ। ये हमारे मंजासिन जो माला अर्पण किए, ये ब्रजवासी के पारासोली मेहमद पारासोली और गुलाल कुंड के ब्राह्मण ब्रजवासी हैं। इसका पिताश्री भी हमारे गुरु महाराज के शरणाश्रय करते थे और इतना भक्ति भाव था इसका पिताजी, और कई बार गांव का चेयरमैन भी था। बहुत भाव भक्ति था और सब परिकर लेके महाराज जी से शरणाश्रय करके भजन किया करते थे। यही मैं संकेत में श्री श्री गुरु महाराज का सरिचा चरितावली गुणावली थोड़ा अपने श्रीमुख से आप लोगों के सामने मनन करता हूँ। वृंदावन धाम श्री श्री राधा रमन मंदिर के विशिष्ट सेवायक धैर्यानंदी और प्रभावशाली श्री श्री विश्वम्भर गोस्वामी थे। उसी समय उसी कालीन हमारे इलाहाबाद में त्रिवेणी इलाहाबाद संगम में पूर्ण कुंभ हुआ था। तो हमारे श्री गुरुदेव को आमंत्रण के लिए हमारे परम गुरुदेव के सामने निकट करके उसको इलाहाबाद कुंभ में ले गए थे। उसका लगातार एकाधार कुंभ मेला में उसका श्रीपाठ हुआ था। जब पाठ होता था महाराज जी हिंदी में बोलते थे। जब पाठ शुरू करने के बाद गंगा जी की महिमा और जमुना जी की महिमा और पतित पावनी सरस्वती जी की महिमा, जब उन्होंने संदर्भ में ये आख्यान किया गंगा जी का, ये धरातल में, इस धरातल में आविर्भाव का वर्णन शुरू किया। जैसे आविर्भाव का वर्णन शुरू किया, ये भगीरथ महाराज का प्रसंग
लोग तो सब ज्ञाती हैं। जब इस धराधाम से जब तपस्या करने लगा भगीरथ महाराज गंगा जी को, तो गंगा जी ने बोले बेटा हमारा धरातल में जाऊंगा तो हमारा वेग कोई सहन नहीं कर, हम प्रसाद नहीं चलते, तो आप हमको उपाय बता। आपने हम बोलो आपका जो वेग से धरातल तक जाएंगे तो हमारा उपाय बताइए। बोले एकमात्र शिव जी हैं, उसको संतुष्ट करो। शिव जी का उपासना किया, तपस्या किया, शिव जी ने जब गंगा जी शिव जी के जटा में आए, धरातल में आए, जब गंगा जी बोले देख बेटा तुम शंखनाद करते करते जाना, तुम्हारे पीछे पीछे मैं आऊं। ठीक है। जाते 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 इतना दूर गया, पद्म मुनि के आश्रम तक गए। ये शंखनाद करते करते जा रहे हैं आगे को, गंगा जी पीछे पीछे जा रहे हैं। तो उसी समय उसका नित्य नियम पूजा पाठ के समय शंखनाद पद्म मुनि ने किया। तो उधर भागे गंगा जी, तो पीछे देख रहे थे गंगा जी को, इधर आ रहे हैं। बोले मैया किधर? बोले इधर। तो उधर से जब लौट रहे हैं तब नाम हुआ पद्मा बोले। तो पद्म मुनि ने बोला गंगा देवी जी निवेदन करता हूँ, जब आए हैं बातों सुनिए। बोले ठीक है, ये जो तुम्हारा जो पद्मा नदी के बारे में महिमा उपार होगा, जो गंगा जी से जो जाया हूँ इससे महिमा उपार होगा। तो उसी समकालीन बड़े श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग पावन अवतार, उन्होंने ब्रज प्रेम को तुम्हारे घर में दान करेगा। वही ब्रज प्रेम को से हमारे नरोत्तम ठाकुर मशाई को दान देना। तो पद्मावती जी बोले स्वयं साक्षात होके आविर्भाव होके बोला जो हम कैसे पहुंचाऊंगा। बोले अरे यदि तुम उसको परिचय लेने का कोई जरूरत नहीं, जैसे तुम्हारा स्पर्श करेगा तुम्हारा धारा उल्टा उच्छ्वसित हो जाएगा, उसी समय समझ लेना चाहिए यही नरोत्तम है। तब ब्रज चलो ये अफान होकर के जब जा रहे हैं भगीरथ जी, जाते 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 वहां पर कपिल मुनि के आश्रम तक गए। कपिल मुनि के आश्रम जाते हैं, वहां गंगा सागर मिल गया। वही गंगा सागर बोली कहा जाता है, गंगा सागर बार बार सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक। जब ये प्रसंग गंगा जी का जब महाराज जी ने बोले त्रिवेणी कुंभ में, तो सब जितना भी श्रद्धा सुनने वाला सब अभिभूत हो। कोई चद्दर उड़ा रहा है, कोई माला चढ़ा रहा है, कोई नोटों का माला बना के बना। जो कुंभ मेला में जो होता है एक दो फिर जो चादर उड़ाना, माला उड़ाना, सब तीर्थ यात्री वहां पर लाइन के लाइन लगे। महाराज जी का इस अवस्था हुआ, चादर और माला ने उसका श्रीमुख ये सब ढक गया। तब हमारे संचालक महोदय श्री श्री विशंकर गोस्वामी जी ने माइक लेके थोड़ा संबोधन किया। ये हमारे निष्किंचन महात्मा है,
ये लाभ पूजा प्रतिष्ठा का कोई आकांक्षा नहीं है, रुपया पैसा का भी कोई ढेर नहीं है। तो मैं ये बात सुन के मतलब रुपया बहुत ढेर हो गया, चद्दर माला रुपया सब ढेर हो गया। तो महाराज जी ने बोले मैं त्रिवेणी संगम के लिए जिस हम आधारा में विराजमान हो वहाँ का जितना भी तीर्थ यात्री भजन ये सब यारू करते हैं उसके लिए मैं नछा दान देता हूँ। तो सबको हाथ ताली देना आश्चर्य की बात है, मणि कांचन छोड़ना असंभव की बात है। तो ये बात हुआ हमारे परम गुरुदेव के आश्रम मैसा ग्राम, उन्होंने एक वहाँ पर सभा को उन्होंने स्थापन किया था और हमारे ब्रज से पंडित मंडली जाते थे और महाराज जी भी लगातार कई साल से वहाँ जाते थे। कई साल के बाद जब महाराज जी गए वहाँ पर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट और आसपास का जितना भी थे सबको वहाँ पर भक्तवृंद सरकारवृंद पादी को वहाँ देखने के लिए दर्शन के लिए गए। वहाँ का कोई मैदान या माठ नहीं है, खेत कमान ये सब है। खेत में भर के आश्रम में भर के भक्तवृंद सरकारवृंद। जब महाराज जी ने ब्रज प्रेम ब्रजधाम प्रेम का जब वहाँ वर्णन किया तो सबको श्रोता स्तंभित रह गए। इसके बाद जब उन्होंने जब अपना शास्त्र ज्ञान ये सब जो आलोचना विषय जब विराम दिया उसके बाद हमारे उस सभा के अध्यक्ष सभापति हमारे कमलाकांत चक्रवर्ती थे। तो उन्होंने बोला भाई सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, 3 बार ये शब्दों को उच्चारण किया, कोई नहीं जाना। ये जो महाराज का जो 2 शब्द जो आप लोगों के सामने रखूंगा कोई नहीं जाना। तो बोल रहे अच्छा ठीक है। तो बोल रहे सुनो, एक महिला मतलब एक दुकानदार मिठाई रबड़ी रसगुल्ला का दुकानदार वहाँ मोइरा बोलते हैं। तो बोल रहे बेटा तुम यहाँ दुकान में रहना, उसका एक लड़का था, तुम दुकान में रहना, मैं यहाँ पर एक रामायण कथा हो रहा है वहाँ आता। तो रामायण कथा में ये प्रसंग हो रहा है जीव हिंसा, जीवे दया। तो किसी को भी कोई जीव को मन प्राण से दुख या परेशानी नहीं करना, ये प्रसंग हो रहा। तो ये आए बोले बाबा अब तो डेली जाता है, मैं एक दिन जाऊंगा। तो वही प्रसंग सुना, जीवे दया वैष्णव सेवा ये सब सुन के आया। दूसरे दिन दुकान में बैठा लड़का, एक बड़ा भैया आकर के रसगुल्ला का भुगना में चप्पल चप्पल कर खाने लगा। लड़का देख रहा है जीवे दया तो खा रहे। उसी समय अकस्मात पिताजी आए, बेटा क्या कर रहे हैं, देखना है ना इतना नुकसान किया। बोले पिताश्री आप तो डेली जाते हैं, मैं तो एक दिन गया जीवे दया दूध को। अरे बेटा यहाँ क्यों लाया, वहाँ छोड़ के आ गया। उस यहाँ क्यों लाया दुकान, कुछ छोड़ के आ। उसी प्रकार हमारे अध्यक्ष महोदय सभापति महोदय महाराज ऐसा नहीं होना चाहिए।
वो जो ब्रज प्रेम और ब्रज भाव का जो हमारे सुन लिया है, ये यहाँ नहीं छोड़ दिया, घर में भी लिया। इस तरह से ये वर्णन होते रहा। उसके बाद आप लोगों के सामने ज्यादा विशेष नहीं बोलूंगा, संक्षेप में चाह रहा हूँ। एक तो फिर महाराज जी 2-2:30 बजे से कथा करते थे श्री श्री जागनाथ मंदिर में। उसके बाद हमारे गुरु आश्रम में, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु मंदिर में, और उसके बाद श्री मीरा मंदिर धर्मशाला में। चार कथा बोलती थी। तो हमारे अद्वैत परिवार के शिष्य श्री सोमर बाबू उम्र करीब 75-80 थे। उसका सरधर्मनी भी 75-80 लगभग थे। तो नियम समय के समय कोई कमरा रहने का नहीं मिला। तो हमारे बड़े गुरु भाई सखीदास जी महाराज के सामने उसका भेंटनामा कुटिया है। तो हमारे राधा गोपीनाथ का पुजारी थे, यहाँ कुटिया ताला बंद था। तो बोला ठीक है चलो, कहीं नहीं मिला तो वहाँ कुटिया में रख देता हूँ। तो ये जो भक्तजन अष्टमी के दिन आए, अष्टमी दिन गया, नवमी दिन गया, दशमी दिन गया, 3 दिन निकल गया। जैसे एकादशी का दिन हुआ, हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी गद्दी के जो सदस्य बहुत तेजस्वी और बहुत कर्मठ थे और बहुत शासन करता था। 8-10 सदस्य महाराज के पास आकर घेर लिया और बोला आपने दास गोस्वामी का भजन कुटी में आप महिला रख दिया। उसी समय महाराज कथा में जाने के लिए तैयार होकर निकले थे। देखो महाराज जी का दंड विनय, उसका जो दंड विनय कैसा स्वभाव था। त्रिना दोपि सुनी चलो तोरो सुनी सुनीना ओमानिनो मानदेनो कीर्तने सदा। उन्होंने सदस्य को बोल रहे महाराज हमको जो दंड देना हम सिरों धारण करके मान लूंगा। एक ने बोला ये बादशाह तो नहीं सुनेंगे, ये भी हटाना होगा, नहीं तो हम लोग खींच के उसका बेडिंग और सब फेंक देंगे। महाराज उन्होंने विनय करके जो भी दंड देंगे यदि हमके कुटिया से निकाल देंगे तो हम मंजूर हैं। उन लोगों को कोई बात को कान में ना सुने। ठीक है, बहुत वार्तालाप तर गर्द होते रहा। श्रद्धालु देर हो रहा है इसलिए श्रद्धालु आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? तो मैंने बोला महाराज जी श्रद्धा सब अपेक्षा कर रहे, आप कथा में जाए। महाराज जी निकल गए। जब हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी के अधीन सदस्यगण थे, बोले महाराज यदि आज्ञा हो तो मैं एक शब्द बोलूं। बोले तुम क्या बोल रहे हो? तुम तो काल का चेंगना। चेंगना शब्द मतलब जो हमारे देश में जो मुर्गी का बच्चा छोटा छोटा होता है उसको चेंगना बोलते हैं। तो ये शब्द हमको बोला। ठीक है महाराज। एक ने बोला ठीक है बोल, क्या बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है, ये जो दास गोस्वामी का समाज का जो शासन है हमारे महाराज के लिए न सबके लिए, मतलब सबके लिए। मैंने बोला जो आप लोग जो सदस्य हैं ये सदस्य हैं, ये अपना भेंटनामा कुटिया में हमारे गुरुकुल को किराया दिया। तो सोचो, एक सदस्य ने बोला
बोले देख मैंने बोला ना किसका के सामने नहीं आना, यदि क्या जवाब देखो बोलो, मैं तो चल दिए। सब सदस्य चले गए। महाराज जी कथा समाप्त करके आए, बोले बाबा क्या हुआ? तो हमारे बूढ़े गुरु भाई सखीदास जी महाराज बोला ऐसा ऐसा हो, ठीक है। ये प्रसंग चला गया। इस प्रसंग में हमारे समर बाबू ने बोला एक यदि जमीन मिले तो भक्त निवास नाम बोल के एक आश्रम खोले। ठीक है। तो महाराज गए कलकत्ता, प्रचार हुआ, ये सब हुआ। जब महाराज जी यहाँ पर आए तब कुंडवासी वैष्णव 350 त्यागी वैष्णव महंत महाराज के वहां मीटिंग हुआ, जो महाराज ने दास गोस्वामी के नाम से रुपया उठाई करके अपना भक्त निवास बनाया। ठीक है। हमारे कान में आया जो काल इस समय मीटिंग होगा भजन कुटी में। मैंने महाराज श्री को बोला महाराज जी मैं एक आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, वहाँ पर ये प्रसंग आएगा, उस प्रसंग में आपको पूछा जाएगा जो दास गोस्वामी के नाम से यदि रुपया चंदा उठाई करना तो उसको क्या दंड दिया जाएगा। भाई ठीक है मैं बोलूंगा, मैं तैयार होकर रहूंगा। ठीक है तुम भी रहना। ठीक है। मैं महाराज जी का पीछे में बैठा हूँ। वहाँ पर सदस्यगण और महंत महाराज एवं महंत महाराज के सामने एक सभापति निर्णय किया जो इस सभा का संचालन। तो सभा का संचालन महोदय ने बोला, बोले महाराज यदि कोई बाबा बंगाल में जाके, उड़ीसा में जाके, पूरी धाम में जाके यदि दास गोस्वामी के नाम से चंदा इकट्ठा करें और अपना मकान बनाया तो उसको क्या दंड दिया जाएगा। महाराज जी खड़े होके बोले इसी अवस्था में, इसी कपड़ा में, इसी सभा में उसको बहिष्कार, यही दंड होना है। तो सब कोई वैष्णव मंडली सब चौकी हो गई, क्या बात है। महाराज जी बोले इसी अवस्था में, इसी कपड़ा में हम वैष्णव त्याग और दोबारा हम ये भेटना कुछ भी नहीं प्रवेश करूंगा। सब इधर उधर सब देख रहे हैं, सब चुप है। मैंने यही दास ने बोला, बोले महाराज यदि आप लोगों का आज्ञा हो तो एक शब्द तो पूछ सकता हूँ। हाँ बोलो। बगैर प्रमाण में इतना बड़ा मीटिंग क्यों जोड़ा गया? कुछ तो प्रमाण चाहिए। कुछ प्रमाण नहीं और बातों बाद में हवाई फायरिंग कर दिया जो दास गोस्वामी नाम से चंदा इकट्ठा किया जाएगा। कोई प्रमाण है, सबूत है तो कोई नहीं छूट। तो ये जो कई यहाँ पर होता था, हमारे परम गुरुदेव के सामने भी ये बात आया। जब हमारे परम गुरुदेव जब अचैतन्य अवस्था में 7 दिन हमारे शिष्य वर्ग, हमारे बड़े भाई सत्यदास जी महाराज, नोम गोपाल ये सब थे, तो हम लोग कीर्तन करते थे बीना महारानी के मस्तक की तरफ और गीता भागवत को रख के कीर्तन करते थे। तब ये समस्या आया, पंच कमेटी महंत महाराज को लेके बोल रही है ये तो चला गया, चलो बाहर निकालो, हम लोग ताला लगा। तो मैंने बोला जब तक शिवपुर में नहीं जाता है तब तक यहाँ ताला लगेगा नहीं। ये सब बात तक होता रहा। जब महाराज जी चेतन आया तब महाराज जी गुरु महाराज के नाम से भेटना हमारे
पंच कमेटी की ओर से होता था, तो उन्होंने रजिस्टर करके भेजने वाले हुए। ये हमारे मराठी का अवदान है। और देखो, जिस समय जो जयसिंह घेरा में उन्होंने कथा भागवत राधा सुधाने की कथा पाठ करते थे, उसी समय महाराज जी का परम गुरुदेव का तबीयत ज्यादा खराब होने लगा। मैं हूँ सीध की तरफ, परम गुरुदेव का मस्तक हमारे जंगा के ऊपर, उसको हम हरिनाम सुना रहे हैं। और सतीदास भी हमारे पद संभालन कर रहे हैं। इस बावजूद में परम गुरुदेव बोले, देखो मैं मोने कोरी भगवान के पावात से वैष्णव सेवा बड़ो मोने कोरी, ये शब्दों की 3 बार उच्चारण किया। जो बोला, मैं चाहता हूँ भगवान से मिलने के बाद भी वैष्णव सेवा ही बढ़वाए, उसको खबर नहीं देना, नहीं तो बहुत हम दुख पाएंगे। हम और बड़े भाई सतीदास धर्म संकट में पड़ा। इस अवस्था में उन्होंने शेष अवस्था होने जा रहा है और आदेश कर रहे हैं, गुरुदेव को खबर नहीं थी। एक हमारे काका गुरु थे गोविंद दास, उसको मैं भेजा के चीत काचित करके आप महाराज के पास जाइए और बोलना। उन्होंने पूछेंगे गुरु महाराज, जे गुरु महाराज कैसे हैं, आप बोल देना ठीक है, लेकिन केशव ने आपको बुलाया, इतना बोल। लेकिन बोलने का तात्पर्य अलग हो गया। तो महाराज जी का मन थोड़ा उच्चारण हो गए। श्रीमान राधा सुधानी जी का जो कथा चल रहे थे, बीच में विराम देके, उस समय वृंदावन से राधा कुंज सीधे रास्ता नहीं था, मथुरा होके गोवर्धन होके आते टांगा चलता था। तो हमारे यहाँ पर जाड़े का दिन था, जाड़े का मौसम था। तो हमारे अग्रणीय पंडित नंदलाल पंडित जी महाराज उन्हें बोले, देखो केशव बाबा, जाड़े के दिन है, बहुत परेशान होगा, तो विमान तैयारी करके परिक्रमा लगाओ। हमारे परम गुरुदेव को विमान सजा करके परिक्रमा खोल करताओं के सहित परिक्रमा लगे। 3 बार परिक्रमा हुआ। एक बार परिक्रमा होने के बाद हमारे गुरु महाराज टांगा में बाजार में जैसे हनुमान जी मंदिर है, वहां देखा कि कीर्तन परिक्रमा हो रहा है। टांगा के ऊपर से मूर्छा होकर जमीन में गिर, उसमें महाराज जी को चेतन करने के लिए बहुत टाइम लगा। 2 महात्मा बाएं तरफ, 2 महात्मा दाहिने तरफ पकड़ के हमारे शिवपुर में ले गए। इतना विरह आकुति, विरह जला, जो आंखों में नहीं देखा विश्वास नहीं होगा। गुरु का जो अंतर्धान होने के लिए उसका जो विरह है, ये विरह लाभ करते करते रोते रोते शिवघर तक गए। वहां पर इतना भीड़ था, जैसे आज का जो हमारा महोत्सव में जैसे भीड़ था, वैसा शिवघर में वहां इतना भीड़ था। वही हमारे परमानंद गुरुदेव का जब निकलना प्रवेश किया, उसी समय भी हमारे ब्रजवासी लोग
गोवर्धन का ब्रजवासी लोग बोले ऐसा शिव घर में मेला तो भी देखा नहीं। करीब करीब 15,000 संत महात्मा नर नारी शिष्य सब उपस्थित थे। एक कंदन का कोलाहल, दुखमय का कोलाहल, नर नारी के आंखों से अश्रुधारा, ये देखने लायक। हमारे स्नेह भाई पंडित वैष्णवदास जी महाराज वहां गए। जब वहां पर चीता जलने के बाद 4 बार परिक्रमा किया, 4 बार प्रदक्षिण किया। वहां पर विरह अनल के सामने ये बैठ गए, धरना देके बैठे। जब चीता शांत होने के बाद अपना संतोष शिष्य वर्गों को लेके सारी चीता का नाम उन्होंने लिया है। तो वहां पर जो हमारे विदेशी भक्त ये सब जाते थे, उसके वहां माला और दीपावली के तरह दीप दान करते थे। तो हमारे वैष्णवदास जी महाराज पूरे समस्त चिता का भाव ले आए, अपने भजन को दे दिए। जब हमारे गुरु महाराज का समाधि स्थापन करने का विचार आया, तो वहां पर जो चबूतरा बना है करीब 3 फुट 4 फुट पूरी होगा। तो मिस्त्री लोग ईंट पत्थर देके उस चबूतरा को भर रहे थे। मैंने बोला वैष्णवदास जी को बोला, भाई इसी समय कान में आएगा जो महाराज का चिता का जो भस्म है इसमें डालो। तो इसमें हमारे समाधि के जो नीचे है संपूर्ण सेवक का चिता का सिद्ध स्वरूप, उसके ऊपर जो हमारे समाधि बना हुआ है सिद्ध स्वरूप मान लीजिए। उसमें क्या हुआ, और हमारे सेवक बिंदु से थोड़ा सा मन मुटाव हुआ न, कैसे जैसे वहां पर रख दिया गया अपना भाव से, गुरु गोविंद का भाव से। कोई प्रदीप जला रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई धूप दे रहा है। इसमें दूसरा सेवक बोल रहे इतना शोभ है तो हम लोगों को नहीं क्यों बताया गया, हम लोग तो वंचित रहे, हम भी तो चेला हैं, शिष्य हैं। ये सब प्रकरण मैं इतना ही करके मैं विराम देता हूँ। आप लोगों से विशेष धन्यवाद। अधिवास में जो आप लोगों का मूर्ति तस्वीर जो देखा, आनंद में देखा, जो अधिवास के शेष में जो हरिनाम महायज्ञ जो होता था, उस समय जो आप लोगों का आनंद देखा, बहुत धन्यवाद देगा। जो काल जो हरिनाम जो संकीर्तन हुआ, इसमें भी आप लोगों जो भाग लिया, आज में भी जो हमारे गुरुदेव का प्रार्थना कीर्तन, उसका जीवन लीला कीर्तन, सूचक कीर्तन, आप लोग भाव विभोर होकर सुना। इससे हमारा धन्य से धन्य में लाभ। मैं इतना ही करके आप लोगों के सामने अपने वाणी को विराम देता हूँ। और काल से हमारे नियम सभा का कथा एकादशी तक 23 तारीख तक चलेगा। उस दिन भी हमारे छोटे भाई प्रवीण वैष्णवदास जी आग्रह किए हैं, जो 1 महीना का जो था पुष्पांजलि स्वरूप आप अर्पण कर। मैंने बोला
ठीक नहीं है कि हमारा तबीयत ठीक रहे तो दो शब्द बोल के हम पुष्पांजलि लेके भी रख दो। मैं इतना ही करके आप लोगों के सामने हमारी वाणी विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे निताय गौर।